Dear Mr. Jimmy Mistry, the whole wonderful team of DLC in Surat, all leaders from various walks of life in Surat, ladies and gentlemen. It was about 1.5 years back. I had spoken to some people in Surat to start a group of young people in the form of maybe a club or some other structure where they can meet, where they can discuss their visions, where they can dream together, pool their energy, and take Surat, Gujarat, India, and the world forward. And when Rachit and his team came to me and asked me to join them in this evening, I thought it was a dream come true. So I congratulate Jimmy and the whole team. What a wonderful thing you are doing here. 21st century belongs to India and nobody can deny it because we are the fastest major economy, fastest growing major economy in the world today. Even today, the estimate is will grow at 6.4% when the whole world is facing problems in economy. This will take us further because we are amongst the youngest nations in the world because our median age is 28.7 years. When China is 37.4, America's median age is 37.5. England is 41 years, Germany is 47 years, and Japan is 48 years. And we are knocking them that they are getting old, and India is full of young people. Every year, India produces 65 lakh graduates, of whom 15 lakhs are engineers, and also about 1 lakh MBBS, about 53,000 another Ayush doctors that India is producing. It is these reasons, along with the fact that India is the land of solar energy, and we are among the leading nations as far as renewable energy technologies are concerned. We are leading and we are showing the world the way. Among the IT nations, everybody understands that India is the driving force in Silicon Valley. Even Google needs a Sundar Pichai. Not to name a lot of them, the fact remains that Indian mind is amongst the very best in synthesizing different ideas and to look deeper. West had a problem. It was their strength, and this is also their biggest weakness. They had a strength because they want to break everything down. They wanted to understand everything, and this problem and this strength at the same time. Mind you, हर आदमी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है वही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी होती है. प्लेटो और सोक्रेटिस के टाइम से वेस्ट ने एनालाइज करना शुरू किया. एनालाइज करने का मतलब है समीक्षा करना. समीक्षा करने के लिए आपको तोड़ना पड़ता है. उन्होंने हर चीज को तोड़ा, हर चीज के अंदर घुस के देखा. उन्होंने मॉलिक्यूल तक पहुंचे, मॉलिक्यूल को तोड़ा तो उसके अंदर एटम मिला, एटम को तोड़ा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मिले, उसके अंदर गए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिले, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस के बाहर एटम में जहां इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे वो ऑर्बिट्स मिले. ऑर्बिट्स में क्या था? ऑर्बिट्स खाली थे. ये शून्य वो है जो पश्चिम की पूरी थिंकिंग जो प्लेटो और सोक्रेटिस से शुरू हुई, वहां जाके फिर उनको समझ नहीं आता. इसीलिए क्लोज टू 60% ऑफ न्यूयॉर्क पॉपुलेशन हैज टू टेक स्लीपिंग पिल्स टुडे. आगे क्या? They are unable to understand, and this is where India comes into play. India comes into play because हमारे यहाँ खाली कुछ भी नहीं है. हमारे यहाँ एक गरीब झोपड़ी में रहने वाले आदमी से भी आप जाके पूछें तो वो कभी शून्य में नहीं सोचता. उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है बताने के लिए. अरे नहीं, अभी तो भगवान है, मेरे कर्म हैं. हमारी पूरी जो फिलॉसफी थी, वेदांत था, वेद थे, उपनिषद थे, उसके 5 ब्रह्म वाक्य में पश्चिम जहां जाके रुक गया उससे आगे हमारी फिलॉसफी शुरू होती है. शंकराचार्य ने एकात्मवादी मोनिस्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर होल फिलॉसफी उन्होंने दिया था. एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, सर्वम खलु इदं ब्रह्म. ब्रह्म सर्वव्यापक है. मैं भी ब्रह्म हूं, आप भी ब्रह्म हैं. इस पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं. सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या. सत्य सिर्फ ब्रह्म है, उसके अलावा सब मिथ्या है. जो अलग अलग स्वरूप दिख रहे हैं वो माया के कारण दिख रहे हैं. नाउ द साइंटिस्ट्स आर रीचिंग दिस प्लेस. रदरफोर्ड ने जब एटम तोड़ा तो उसको भी अल्टीमेटली वहीं पहुंचना पड़ा कि वो एटम कहो या ब्रह्म कहो, अल्टीमेटली अल्टीमेट इकाई तो वही है.
आई एम नॉट आस्किंग यू टू सीक ग्लोरी इन आवर एंटिकिटी, नो। प्राचीन भारत की सभ्यता के गौरव में फंस के उसको याद करके उससे आगे स्टेप लिए बिना हम फंसे रह गए, और यही कारण था कि हमने पहली रिवॉल्यूशन इस दुनिया के मिस कर दी। वी हैव टू बी प्राउड ऑफ आवर पास्ट, बट वी आर नॉट स्टीप इनटू दैट। वी हैव टू गो अहेड, वी हैव टू स्टेप अहेड, एंड विद दैट ड्राइविंग फोर्स वी हैव टू लीड द नेशन एंड वी हैव टू लीड द वर्ल्ड। बिजनेस आइसोलेशन में नहीं बढ़ता। हम और आप सभी लोग मिलकर इस सोसाइटी को, इस देश को, इस शहर को, इस राज्य को, इस देश को और इस दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। वी हैव टू बिकम पावरफुल। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, संकलन उनका करे समस्त विजयी भारत माता हो जाए। आप लोगों में एनर्जी है, आप लोगों में नॉलेज है, आपके अंदर भूख है, आपके अंदर ड्राइव है, लेकिन वो जब तक के आपका आंख, कान और आपका दिमाग खुला नहीं होगा। प्रतिभाएं आपके अंदर हैं, लेकिन उस प्रतिभा को खाद पानी देने का काम इस तरह के क्लब्स करते हैं जहां खुले हवाएं चारों तरफ से आती हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। डेला क्लब का मोटिव लॉफ्टेड होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। इट इज दिस यंग जनरेशन जो हिस्ट्री में उस कस्प पे खड़ी हुई है, वहां खड़ी हुई है जहां या तो डर के पीछे हट जाएं या एक लीप ऑफ फेथ उससे आगे कूद जाए। आप कूद जाएंगे तो आप उड़ना शुरू करेंगे। सूरत में डीएलसी का मतलब है कि यहाँ डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया को दिखे कि सॉलिटेयर्स तो यहाँ से हैं। इंडिया को डायरेक्शन देने का काम आपका है, वर्ल्ड में इंडिया को चमकाने का काम आपका है, अपने आप को आगे बढ़ाने का काम आपका है। आप छोटे गोल्स में मत फंसिएगा। यहाँ बात प्रॉफिट मेकिंग की हो, इंपॉर्टेंट नहीं है। There, your life has to be significant. You have to make a difference. Your being here on this earth as a human being must be for a reason. That reason you have to look for, and you have to live a significant life. पूरी दुनिया ताकत को सलाम करती है। कितने एक सेंचुरी से अमेरिका वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री है। आज भी इस दुनिया में जीडीपी की जब काउंटिंग होती है, अमेरिकन जीडीपी $21 ट्रिलियन है। चाइना उसके बाद आता है $15 ट्रिलियन पे। वी हैव स्टार्टेड वेकनिंग अप नाउ। हमने जागना शुरू किया है। हमारी इकोनॉमी का साइज $2.7 ट्रिलियन है। वी हैव जस्ट क्रॉस यूके। जिस यूके ने 150-200 साल तक हम पे राज किया, आज उसकी इकोनॉमी को हमने क्रॉस कर लिया है। हमने फ्रांस को भी क्रॉस किया, हमने इटली को भी क्रॉस किया, और नेक्स्ट टारगेट वुड बी जर्मनी, दैट इज $3.5 ट्रिलियन। उसके बाद जापान, क्लोज टू $5 ट्रिलियन। उसके बाद 2 टारगेट और बचेंगे, चाइना और अमेरिका। इतना बड़ा सोचना है तो गुमनाम से सितारे की मुझको नहीं तलाश, मैं मुनफरीद हूँ। मुनफरीद मीन्स मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ। यू हैव टू बी डिफरेंट, योर गोल्स हैव टू बी बिग, यू हैव टू थिंक बिग। मैं मुनफरीद हूँ, तू मुझे आफताब दे। मैं सूर्य की तलाश में हूँ, मुझे वैसी चमक चाहिए। अभी जिमी मुझे बता रहे थे दैट पारसीज वर्शिप फायर। सूर्य की पूजा होती है पारस में, भारत में, फारस में पारसी लोग करते हैं। भारत में भी सन की पूजा की जाती है। हम लोग सूर्य नमस्कार भी करते हैं। यदि सूर्य नमस्कार करते हैं तो दुनिया आपको नमस्कार करेगी, यदि आप शिद्दत से और दिल से नमस्कार करते हैं तो। मैं उन यूथ को कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो ये सोचते हैं कि किसी पैसे वाले घर में पैदा होते हैं तो जीवन बड़ा आसान हो जाता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं ओवर द सेंचुरीज के लोगों की जब गिनती मैंने की, मुझे पढ़ने का शौक है, मैं ढूंढता रहता हूँ। मैंने तलाश किया तो मुझे पता लगा कि ज़्यादातर लोग जो दुनिया में बैरियर्स ब्रेक करके लीडिंग सिटीजन्स बनते हैं वर्ल्ड में, वो सभी वो होते हैं जिन्होंने बचपन में गरीबी भी देखी होती है, डिफ़िकल्टीज भी देखी होती हैं, जिन्होंने तकलीफ देखी भी है। और वो तकलीफ, वो पॉवर्टी, वो डिफ़िकल्टीज, वो रिसोर्सेज की कमी, वो उनके लिए ड्राइविंग फोर्स होती है। डीएलसी मेंबर्स को मैं एक चैलेंज थ्रो कर रहा हूं कि ब्रांड्स बनाने की ज़रूरत है। आज हिंदुस्तान में जिसके हाथ में देखो उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन तो होता है, लेकिन या तो वो एप्पल होता है, या वो सैमसंग होता है, या कोई और वर्ल्ड के किसी लीडिंग कंपनी का फ़ोन होता है। अनफॉर्चुनेटली वी own among the largest number of smartphone in our hands today in the whole of world, but Indian brands तो दिखाई नहीं देते।
इस दुनिया में कोई बीमार है, किसी को कुछ जानना है, कुछ भी हो, फटाफट गूगल पे उठा, लैरी पेज के गूगल से उसको चीजें देखनी पड़ती हैं. And these are the companies who are ruling the world today. Oracle, it is showing the path. Elon Musk, SpaceX भी बना रहा है और ऑटोमेटिक कार्स भी बना रहा है, and is giving a new idea. What we need today are thought leaders, जिनके पास विचार हैं. माइंड यू, आंसर्स आपको गूगल पे सब मिल जाएंगे. गूगल पे नहीं मिलेंगे, किसी एनसाइक्लोपीडिया को उठा लीजिए, किसी टीचर से पूछ लीजिए, किसी एक्सपर्ट से पूछ लीजिए. डीएलसी की इंपॉर्टेंस इसमें है कि आंसर्स तो सब लोग बता देंगे. जो किताबों में लिखे आंसर्स वो ढूंढना, इसमें कुछ ग्रेट नहीं. देयर इज नथिंग ग्रेट इन दैट. द ग्रेटनेस लाइज इन आस्किंग राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. क्वेश्चंस वहां से निकलते हैं जहां आपकी मेधा काम करना शुरू करती है, जहां आपका विवेक काम करता है. मैंने इंडियन फिलॉसफी की बात की थी, जहां आपके अंदर का ब्रह्म जागृत होता है. जब आपकी अंतरात्मा आपको टकोरती है कि इस चीज को तलाश करो, ये क्या है. प्रतिभा के लिए पूरी दुनिया में टैलेंट की डेफिनेशंस नहीं हुई. इंडिया में बहुत पहले से टैलेंट की, प्रतिभा की एक डेफिनेशन है जो मुझे बड़ी पसंद है. नव नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा, जिसमें नए नए विचार लगातार फूटते रहते हैं. एक विचार नया आया, उसके बाद उसका नया एंगल आया, उसके बाद तीसरी उसकी एक नई डायमेंशन खुली. नव नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा वो प्रतिभा है. उसको जागृत कीजिए, उसको बढ़ाइए, तब आपको पेटेंट्स मिलने शुरू होंगे. मैं 2019 के फिगर्स याद करने की कोशिश कर रहा हूं. वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पेटेंट्स अमेरिका में आए. पेटेंट्स रजिस्टर हुए 57,000. उसके बाद चाइना में आए 52,000. उसके बाद जर्मनी में आए, जापान में आए, इंग्लैंड में आए, फ्रांस में आए. नीदरलैंड्स वाज नंबर 20th. 3,200 पेटेंट्स नीदरलैंड्स में रजिस्टर हुए. हम पहले 20 कंट्रीज में से नहीं थे. पेटेंट्स की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बिना आप कुछ नहीं कर सकते इस दुनिया में. You'll get sold. आप खत्म हो जाएंगे, आप खो जाएंगे भीड़ में. पेटेंट्स के बिना आपके ब्रांड्स नहीं बनेंगे. वर्ल्ड के लीडिंग ब्रांड्स में आज आप न्यूयॉर्क में जाइए, 42nd स्ट्रीट पे जाइए, आप ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे लंदन में जाइए, आप लॉस एंजलिस में जाइए, कितने इंडियन ब्रांड्स आपको दिखाई देते हैं. जिसका ब्रांड है, जो दिखता है, वो बिकता है. उसके बिना आपके पास कैपिटल नहीं आ सकती. ब्रांड बनाने के लिए आपको टॉप क्लास R&D की जरूरत है. टॉप क्लास R&D के लिए आपको राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन शुड अराइज इन योर माइंड. आपको सही तरह के प्रश्न पूछने की जरूरत है. सही तरह के प्रश्नों के बिना आप कभी रिसर्च नहीं कर सकते. रिसर्च नहीं करेंगे तो आपको पेटेंट्स नहीं मिलेंगे. पेटेंट्स नहीं मिलेंगे तो आपके ब्रांड्स नहीं मिलेंगे. इस दुष्चक्र में हम फंस के रहेंगे. आप यदि घिसी पिटी चीजों को यदि गूगल से ही तलाश करेंगे तो गूगल से आगे नहीं बढ़ सकते. देयर आर पीपल टुडे इन द वर्ल्ड हु आर थिंकिंग बियॉन्ड गूगल. This is a wonderful platform, and I find all of you looking very intently and trying to share with me what I'm thinking. It impels me to give you some more figures. Human Development Index, आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी सिविक कम्युनिटीज़ क्या हैं, आपकी एंटरटेनमेंट की क्वालिटी क्या है, इन सभी का एक सम एंड सब्सटेंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आता है. वर्ल्ड में HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में नंबर 1 नेशन नॉर्वे है. नंबर 2 इज स्विट्जरलैंड. नंबर 3 इज ऑस्ट्रेलिया. डेवलप्ड नेशंस ऑल ऑफ देम हैव देयर HDI मोर देन 0.8. 8 से ज्यादा उनकी HDI है. हम कहाँ हैं? इट्स नॉट अ मैटर ऑफ फीलिंग स्मॉल, इट्स अ मैटर ऑफ फीलिंग चैलेंज्ड. हमें एनर्जी आनी चाहिए, आग, फायर इन द बेली. उसके बिना डीएलसी क्लब, आई वांट डीएलसी मेंबर्स टू हैव फायर इन देयर बेली. आप यदि देखना चाहते हैं, वी हैव टू लुक एट 0.8 फर्स्ट, देन 0.9, देन, and we have to be amongst the leading nations in the world, and it is possible. 1958 में सिंगापुर जब नया बना था, वो क्या था? वो इस तरह था जिस तरह से हमारे यहाँ 20 साल पहले मगदल्ला और पिपलोड का एरिया था. इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था. और आज सिंगापुर की तरफ पूरी दुनिया देख रही है कि इतनी मेरिटोक्रेसी की सोसाइटी इन्होंने कैसे बना दी, इस तरह का सर्विस सेक्टर कैसे खड़ा किया, इस तरह की हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पूरी पॉपुलेशन को कैसे प्रोवाइड की. मुझे
ली क्वान का एक, मैंने उसकी बायोग्राफी पढ़ी है, उसने खुद लिखी है, ऑटोबायोग्राफी है। वो लिखता है कि माओ जेडोंग एक बार आया था, डिनर पे हम बैठे थे, एंड ही आस्क्ड मी व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू इन सिंगापुर। उसने बताया कि हम सिंगापुर के लोगों को वन ऑफ द बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना चाहते हैं। वो कैसे दोगे? जो सबसे बेस्ट ब्रेन्स हैं उनको क्रिटिकल पोजीशन पे हम रखना चाहते हैं। नंबर 3, हम पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इस तरह की बनाना चाहते हैं कि मेरिट वाले लोग ही उसमें आगे जाएं, पॉलिटिक्स में भी और एडमिनिस्ट्रेशन। माओ जेडोंग डिडंट से एनीथिंग, ही वेंट बैक, एंड विद इन 12 days अ डेलीगेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट मिनिस्टर के साथ डेलीगेशन सिंगापुर आया। उन्होंने देखा कि इन्होंने करप्शन को कैसे हैंडल किया, इन्होंने इस देश को क्लीन कैसे किया, इन्होंने इस देश में पूरा इकोनॉमी और फाइनेंशियल रिवोल्यूशन कैसे की। और चाइना इज outright following the Singapore model today. I don't mean China is our ideal. No, China is not our ideal. But 1980 में इंडिया और चाइना दोनों का जीडीपी लगभग बराबर था। एंड आई न्यू व्हाट माओ जेडोंग हैड डन टू चाइना। कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पे क्या किया था। कभी हंसी भी आती थी, कभी उन पे तरस भी आता था, बिकॉज वी आर अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इवन दैट टाइम, बट वी आर स्टीप्ड इन पार्टी। हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को बाहर जाना पड़ता था बैगिंग बाउल लेके कि हमें चावल दे दो, हमें गेहूं दे दो, क्योंकि 40-50 करोड़ लोगों को खाना खिलाने के लिए हमारे देश में फूड ग्रेन्स नहीं थे, रोटी नहीं थी खिलाने के लिए। इंडिया ने ग्रीन रिवोल्यूशन किया, आगे बढ़ा, उसके बाद लिबरलाइजेशन आया, आगे बढ़ा, धीरे धीरे आगे बढ़ा, और आज पोजीशन ये है कि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब के पास आज है। आज इंडिया ने वर्ल्ड के लाइटेस्ट रॉकेट से सैटेलाइट ऑर्बिट में छोड़ दिया। अमंग द न्यूक्लियर रिसर्च वी आर अमंग द लीडिंग नेशंस इन द वर्ल्ड टुडे। सुपर कंप्यूटर रिसर्च में हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ्स हैं। लेकिन सिक्के के दोनों साइड हमें देखने पड़ेंगे, दोनों तरफ देखेंगे तभी पता लगेगा। पावरफुल होने की जरूरत है, वी हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग। दुनिया सुनती नहीं है, कोई भाव नहीं देता है। दुनिया ध्यान किसकी तरफ देती है? जिसके अंदर ताकत हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा करना उसी सांप को शोभा देता है जिसके पास जहर हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दीनहीन विषहीन विनीत सरल हो। दीनहीन, विषहीन, विनीत और सरल बैठ के आप हाथ पे हाथ रख के आप कुछ भी भगवान का नाम लेते रहिए, आत्मा परमात्मा की बात करते रहिए, उससे कोई दुनिया को फर्क नहीं पड़ता। नोबडी विल टेक नोटिस ऑफ। आपको IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ेगा, जैसे आज पाकिस्तान जा रहा है। हम उस स्टेज से आगे निकले हैं, और आज दावोस में जब इंडिया बोलता है तो लोग सुनते हैं। बिल्डरबर्ग में जब इंडिया बोलता है लोग सुनते हैं। India is producing some of the major thought leaders in the world today, but we have still a very, very long way to go. जानना important है। Knowledge is said to be very, very important. यहाँ मुझसे पहले जो बोल रहे थे knowledge is critical, knowledge is very important. Yes, knowledge is important, but knowledge is not enough. मन जानत सब बात, बुद्धि को तो सब पता है, जानत भी अवगुण करे। सब कुछ जानते हुए भी आप ऊंधे ऊंधे रास्ते पे जाते हैं। वो इस तरह का है कि आपके हाथ में तो दिया है, लालटेन तो आपके हाथ में, और आप फिर भी कुएं में पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब उस लालटेन में प्रकाश नहीं है। उन सारी बातों का कोई अर्थ नहीं है जो आप जानते हैं, यदि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, यदि आप स्ट्रांग नहीं है, यदि आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। ये आत्मनिर्भर होना सिर्फ सूत्र नहीं है, ये दुनिया को ये बताने के लिए है कि इंडिया अब जाग गया है। आत्मनिर्भर भारत की बात जब आज भारत के बड़ा प्रधान करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं, उसका मतलब ये है कि हम अब अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, अब हम चलना शुरू कर चुके हैं, आगे हम दौड़ेंगे, और उसके बाद टेक ऑफ स्टेज है जहाँ से हम फ्लाई करेंगे। मैं TLC क्लब मेंबर्स को फाइनली एक ही चीज़ सलाह दूंगा, लिसन टू द क्रिटिसिज्म। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो आपकी निंदा करता है, जो आपके फॉल्ट्स बताता है, जो आपकी कमजोरियां उजागर करता है, उसको नजदीक रखिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अपने घर के बाजू में उसको एक फ्लैट भी दिलवा दीजिए ताकि आपसे दूर ना जाए, पास में ही रहे।
निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। आपको डेली धोएगा वो, साबुन और पानी की भी जरूरत नहीं है, डेली बताएगा आपके अंदर तो ये कमी है, आपके अंदर तो ये कमी है। यहाँ टॉकिंग शॉप नहीं बनना है। आप एक दूसरे को फील गुड देते रहें, उससे कुछ होगा नहीं। आपको सत्य देखने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। आपके आंख के अंदर इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि आप अपनी कमजोरियों को भी पहचानें, आप आगे बढ़ें। स्काई इज द लिमिट, इंडिया इज द कस्प ऑफ ग्लोरी। कमिंग जनरेशंस विल रिमेंबर कि 21वीं सदी में हम लोगों की एक जनरेशन ऐसी आई थी जिसने पंख फैलाए और उड़ना शुरू किया। I exhort DLC members to think big, to go high and fly. I wish you all the very, very best. Thank you. Jai Hind. So that was an outstanding speech. I would request you to remain for a minute. Just want to thank you profusely. I think this kind of a speech, this kind of knowledge deserves a nice standing ovation given to him. I really, really thank you. Thank you, sir.